seminar has been organized by Alumni Association, and today I'm sure you know that it is going to be conducted by Mr. Vaibhav Agarwal, who is our distinguished speaker today. You would be happy to know that he is our alumni of whom we are very proud. He has made so many achievements and he has so many milestones to his credit that it will take a lot of time to introduce him. So today's seminar, as we know, it is academics versus action needed, bridging the gap between studies and industry reality. So as the topic reflects, it will give you very enriching glimpses into how you can balance your academics as well as what you can do to take steps for readying yourself and becoming industry ready. So as our student who has been one of the most valuable part of our college, he is going to share some practical insights into what you can do, because he himself has so many achievements to his credit that he will be able to give you the exact precise guidelines that you can follow to excel in your career and in your life. So first, let me just tell you that I've had the privilege, I'll call it the privilege, to teach him also 1 year. So obviously at that time I could see the genius that was budding in the classroom, and he has been a journalist to begin with, and he was based in New Delhi, and he was a journalist in defense newspaper. So he has actually seen the ground reality of the defense field, and he has got very rich experience in that. So he has been there, and obviously excellent with communication also, that you will see. Currently he is the chief executive of operations and business strategy at Business Upturn, which you can imagine someone below 25 years of age, for someone like that to have this title is definitely a great credit. And he has also achieved a lot of things in recent times, also something that he is doing constantly. And he recently attended the International Symposium on Current Developments in the Field of Human Rights, where Indo-US cooperation was discussed, organized by the Department of Law and the Department of Civics and Politics by the University of Mumbai. And he interacted with international dignitaries also. Honorable Ken Paxton, who is the Attorney General of Texas, USA, and Honorable John Scott, ex-Attorney General of Texas. He had the privilege of taking part in the question and answer session, where he posed very relevant and important queries, and he has been appreciated greatly for that. And currently he is also pursuing law in our institute. So he has been gaining a lot of experience, and in recent uh, interaction, I just got to know that he is doing very well in the field of law, of maritime field, and the naval field as well. So the more I say, the less it will be. So as you listen to our guest, you would be knowing what are his achievements and what are the things you can go back with. So that's a brief introduction of him. So before we start, I would like to request our Meenu Paul ma'am to please felicitate Vaibhav. Sir, please, I invite you, sir. And Sharon will assist. Something very important as a journalist. Please give a big hand.
दोनों में एक बार देखा है मैंने. Thank you so much. So shall we begin? So I request Mr. Vaibhav Agarwal to do the honors, and please, stage is all yours. So, very good morning to one and all. Am I audible? Yes. Fantastic. So, Neelam ma'am ने pressure डाल दिया by saying all of what she has spoken of. Before I commence, a brief introduction about myself apart from what Neelam ma'am has delivered. Yes, currently I'm working as the Chief Executive for Operations and Business Strategy at Business Upturn. Now there is nothing unique about it per se because it's merely about and the secret sauce is all that I'm going to deliver at the moment. Before I commence, I would like to know आप लोग कौन से discipline से हैं? By discipline I mean what courses you all are from. How many all of you are from BMM? अच्छा इतने पीछे हो गए BMM वाले क्या हो रहा है? Alright. BCom. BAF. BMS. नहीं ये पहले भी यही आता ठीक है. BSc IT. Thank you. ठीक है. And any other BBI or any other CS or कोई और है? Fair enough. So I would not like to make it boring. इसीलिए हम इसे interactive रखेंगे. All right. Now I would like to ask you all, आप में से कितने लोग हैं जो हायर एजुकेशन के लिए ऑप्ट करने वाले हैं? पूरा हाथ ऊपर करो, क्यों कंजूसी हो रही है? हाँ. Anyone else? Higher education, masters, MBA? नहीं, यहाँ के लोग रील्स देख के बैठे हैं. समझ में आ रहा है. Okay. वहाँ कितने लोगों ने हाथ उठाया था? Ma'am, what are you willing to pursue ahead? CA. CA is higher education or further education? Further education. Who else was there? Yes. Computer application. Masters. Same. MBA. In what? Finance. MBA in finance. CA. All right. May I ask you all why? क्यों ये कहाँ से आप लोग को चस्का चढ़ा है for doing higher education or further education? Any rationales for it? Yes ma'am. तो आप तो CA कर रहे हैं, MBA वाले? No right or wrong answers. Yeah, I just need an answer. Why MBA in finance? It is from the finance field, इसके लिए MBA in finance कर लेते हैं. ठीक है. Any other person who would like to answer why further education or higher education? No. All right. This is the problem I am here to address. All right. So, reasons क्या है वो सबको पता नहीं होता लक्ष्मण. इसके लिए हम आपको बता रहे हैं. MBA वाले कौन कौन थे? Congratulations. 20% of MBA graduates in India are considered employable, which with most lacking leadership and problem-solving skills. Only 20%. Ensure you fall in this bracket. But how? Again, वही बात. 60% of arts graduates struggle to find jobs due to low demand for their skills and limited awareness of alternate और सब career paths. BMM वाले डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर. It's all cool. ठीक है? इसका ये मतलब नहीं है कि आर्ट्स में स्कोप नहीं है. It is not a philosophy, but it is the truth. कोई इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है मतलब वहां पे स्कोप है, आपको स्कोप पकड़ना नहीं आ रहा. कोई इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है मतलब वहां पैसा है, आपको पैसा निकालना नहीं आ रहा. तो ये कहना गलत है कि ये इंडस्ट्री में तो पैसा नहीं है, मिलता नहीं है, यू नो. ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर नथिंग बट प्री कंसीव्ड नोशंस. क्यों? क्योंकि वी डोंट नो हाउ टू कंज्यूम इंफॉर्मेशन. करेक्ट? The day we learn how to consume information is the day we might be able to connect. क्या होता है, हम जब सोचते हैं कि जैसे जब मैंने कहा था मुझे जर्नलिस्ट बनना है, तो मुझे 50 जर्नलिस्ट के एग्जाम्पल दे दिए जो अनसक्सेसफुल है. So what happened with me in my initial days? I felt अरे हाँ ये तो सक्सेसफुल नहीं है. I related myself with them, forgetting that I am not them. Correct? You all cannot be your fathers.
Females cannot be their mothers. You have your individual and independent way of progressing with your life. So you need to figure out your own path and carve it out. क्या होता है ना, जब हम कॉलेज डिग्री परसू करते हैं, उम्मीदें बहुत होती हैं. IT people, I would like to know from you all, what do you think IT की डिग्री आपको क्या देगी? आप पढ़ के मत बोलना, कुछ नहीं बोल रहे क्या? बाप रे. यस, क्या IT लिया है, डिग्री से क्या एक्सपेक्टेशंस है? डेफिनेटली कुछ तो सोच होगा ना, तभी IT में आए हो. कोडिंग कौन था ये? अब IT वाला कोडिंग नहीं करेगा, मैं तो नहीं करने वाला. क्या एक्सपेक्टेशन क्या है कॉलेज डिग्री से? ऑल द डिसिप्लिन्स आर सिटिंग हियर. व्हाट इज योर बेसिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ ग्रेजुएशन डिग्री? क्यों कर रहे हो ग्रेजुएशन? जॉब के लिए कर रहे हो. कितने लोगों को जॉब करना है इसके बाद? बिजनेस. वाह, तो क्या रिस्पॉन्स हो. तो नहीं, बट इट इज गुड दैट एटलीस्ट ही इज क्लियर कि बिजनेस 9 to 5 बैठने का छोड़ो यार. तो उम्मीदें क्या होती है जो आप लोगों ने बोला? एम्प्लॉयमेंट, स्किल सेट्स मिलता है डिग्री से, एक्सपेक्टेशन है. हाँ, फैकल्टी पीछे बैठी है, सोच लो. Alright. Financial security मिलेगा. Yes, because we will have a job. We will have a good reputed and designated job. We will get a good professional identity. We will have good networking. We will have a secure future. कितनों को लगता है यही expectations है? यही expect करके डिग्री में आए हो? How many of you all feel so? कि ये तो बेसिक है, ये मिलना ही चाहिए. How many of you all feel so? बाकियों को नहीं लगता. चलो ठीक है. हकीकत क्या है बंधुओं? हकीकत ये है कि आपको ना कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है. आप लोग कंपटीशन में घुस रहे हो, क्योंकि जब तक डिग्री नहीं है तब तक तो कंपटीशन ही नहीं है. आप लोग तो वो टीयर में ही नहीं आ रहे हो. डिग्री होगा तब तो कंपटीशन में आओगे. तो डिग्री होने से आप पहली चीज जो कर रहे हो, यू आर एंटरिंग इनटू अ वेरी डीप वैली ऑफ कॉम्पिटिशंस. नंबर 2, व्हाट इज हैपनिंग? देयर इज नो अप्रोच. बिकॉज जो अभी आप लोगों ने बोला जॉब मिलेगा, कहाँ से आ रहा है जॉब? कौन आ रहा है? कौन से फरिश्ते उतर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम. You will be what? An average in the crowd. Why you will be an average in the crowd? Because there is a high sense of entitlement that a degree might give you. No experience. डिग्री से एक्सपीरियंस तो नहीं मिलने वाला, पक्की बात है. कंफ्यूजन भी होगा. कोई मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा जिसने 4 लाख 6 लाख एक ग्रेजुएशन कोर्स में डाला और उसको इमीडिएटली उतना पैसा मिल भी गया. नहीं, हाँ, डीलर डाल हुआ है यार. करेक्ट. You will get that amount back in certain amount of time. Immediate तो नहीं मिल सकता. Am I right? This is the reality which we tend to ignore as undergraduate students. और क्योंकि ये क्यों हो रहा है? हकदारी. ऐसे रिलेशनशिप में किसी का दिल टूट जाए तो क्या बोलता है? कौन था ये हूँ वाला? है? Who was the gentleman? पकड़ में आ गया था. उसने तो छोड़ दिया. हक जताना आता है, रिश्ता निभाना नहीं आता. तुम खुद नहीं निभा रहे हो यार. ठीक है, तो हक तो जताना आ गया यार. डिग्री है, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए. हमने पैसे कॉलेज को दिए. हम कौन हो गए? कस्टमर हो गए. कॉलेज कौन हो गया? सर्विस प्रोवाइडर हो गया. So we are entitled to get because we have paid a sum of money. This is where most of us fall. Okay? Students often believe that enrolling in a college or earning a degree automatically entitles them to a guaranteed employment X, Y, and Z. ये जो feeling of entitlement है, यही आपको आगे बढ़ने नहीं देता. Alright? Because when you think I am entitled, मैंने प्यार किया है तो वो भी तो करेगी. कहाँ जाएगी मेरे बिना? भाड़ में. तो पता भी नहीं चलेगा. वही हाल यहाँ होता है. हमें लगता है we are giving so much, we are pouring in so much of money, time, energy, we are getting those set of marks or we are studying for the set of marks. टॉपर से कोई यहाँ पे? क्या? टॉपर है कोई? टॉपर रैंकर्स?
अरे करो ना हाथ ऊपर यार, कोई रोस्ट नहीं कर रहा। 1 2 3 और कौन है? अरे क्या डिस्कस करना पड़ रहा है कि कौन है? अभी तू हाथ उठा, नेक्स्ट टाइम मैं उठा। रैंकर्स इन द हाउस, कम ऑन, हो रहा है। ओके ठीक है, मुझे बोल लेना तो। मैं भी रैंक कर रहा हूँ, गुड 3-4 इयर्स डाउन में। ओके मैं रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। किसी ने नहीं पूछा कि सर आप रैंक कर, अरे रिज्यूमे भी नहीं देखा मेरा, बोलता किधर सब नहीं मालूम, उनको नहीं फर्क पड़ रहा। मीडिया इंडस्ट्री ऐसी है, और मीडिया नहीं, हर इंडस्ट्री ऐसी है। यस, टेक्निकल फील्ड्स में डेफिनेटली ऐसा होता है जहां आपके ग्रेड्स देखते हैं कि आपको A+ है, O है या क्या है, बट स्किल नहीं आएगा यार। वो तो क्या है, पढ़ के। Our law faculty is right here, Nalanda ma'am. She knows how we study. Sometimes we study 3 days before the examinations. Sometimes we are studying 3 months before the examinations. But getting those set of marks will just. Can someone look at the marks and say how skilled that person is? Absolutely not. ठीक है? अब लड़की मेकअप करके आएगी, सुंदर थोड़ी हो गई यार, मुंह धो के उसका फिर मालूम पड़ेगा ना कि एक्चुअली क्या है। इसके लिए आधार कार्ड चेक करने का है। मैं तो सर जी ये आपका मेकअप है, ये आधार कार्ड नहीं है। आइडेंटिटी आधार कार्ड सर, करेक्ट। अब देखने मत लग जाना घर पे जाके तुरंत ही। ऑलराइट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड रीजन क्या है जानते हैं इसका? सबसे बड़ा रीजन क्या है गाइस? थियोरेटिकल नॉलेज तो है, प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस है ही नहीं। और कहां से लेना है वो भी नहीं मालूम। कितने लोग इंटर्नशिप्स कर रहे हैं? खाली एक ही जन इंटर्नशिप कर रहा है इतने लोगों में? आप भी कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं? लेडीज? नो, गरज ही नहीं है। नाइस। आप लोग जो इंटर्नशिप्स कर रहे हो, क्यों कर रहे हो इंटर्नशिप्स? कुछ उसमें अश्योरेंस है? मतलब क्या, या मिल गई तो कर रहे हैं? आपको कैसे मालूम है कि वो रिलेवेंट है? प्रैक्टिकल तो हर जगह होता है। मैं इंटर्नशिप ज्वाइन करूंगा, बोलेंगे चाय लेके मेरे लिए, वो भी प्रैक्टिकल है ना, करता रहूं, कुछ तो कर रहा हूं। शुरुआत कई बार ऐसी ही होती है, डेफिनेटली। हमें पता ही नहीं है कि कौन सी टाइप की इंटर्नशिप्स एक्चुअली हमारे लिए वर्कआउट करेंगी। तो हम क्या करते हैं? वी हैव अ वेरी वेरी क्वांटिटेटिव अप्रोच। हार्दिक का था ना, ये भी सब। But we don't have a rational approach towards internships or job opportunities. So second, many graduates reject entry level roles, leaving them unemployed for extended periods. क्या 20,000 की नौकरी करूंगा क्या? अकेडमिक परफॉर्मेंस पे बहुत ध्यान देंगे, ग्रेड्स पे ध्यान देंगे, हम कौन सी फैकल्टी के कितने डियर हैं उस पर ध्यान देंगे। लेकिन अब वो DEAR वाले डियर से DEER बन जाते हो, बारह सिंगा घूमते रहोगे। एंड क्या? नेग्लेक्ट बिल्डिंग एसेंशियल स्किल्स सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, टीम वर्क। मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल बता रहा हूँ मैं ये बात, मेरे कटे हुए CTC की कसम, यही चीजें काम आती है, इसके अलावा कुछ काम नहीं आने वाला। ऑलराइट, regardless of whatever your qualifications are, regardless of whatever however chaudhary you are, it's all in the classroom. ऑलराइट, और भी कुछ रीजंस हैं कि एरर क्या हो जाता है। Many students fail to leverage professional connection, attend industry events। और अच्छा, अटेंड इंडस्ट्री इवेंट से ये मतलब नहीं है कि हमने निर्वाण किया था सर, स्पॉन्सर्स हम लेके आए थे सर, हमने नेटवर्किंग कर ली। वो नेटवर्किंग नहीं है, वो आपका PR अच्छा करने का तरीका है। PR अच्छा करने का ये मतलब नहीं है आप नेटवर्किंग में भी अच्छे हो गए। नेटवर्किंग और PR तब अच्छा है जिस स्पॉन्सर के पास आज गए हो, उस स्पॉन्सर के पास अगली बार जाना नहीं पड़े, वो खुद चल के आना चाहिए कि सर निर्वाण कब हो रहा है। ऑलराइट, दैट इज नोन एज गुड PR और गुड नेटवर्किंग। Poorly structured resumes। अच्छा, कितनों के पास रेज्यूमे है? कितनों ने बनाया? और कितनों के पास CV है? क्वेश्चन मार्क है ना, CV क्या होता है, रेज्यूमे क्या होता है? हाँ, CV का फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन क्या है? हाँ, क्या होता है वो? रेज्यूमे और CV में क्या डिफरेंस है सर, इफ यू कैन हेल्प मी अंडरस्टैंड। Curriculum vitae is just means about yourself. It describes you. What is your age? What are you? And resume is just about your background. तो हाँ जी,
सर रेज्यूम मतलब जब फ्रेशर कोई रहता है ना उसका रेज्यूम बनता है और जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है उसका सीवी बनता है, मतलब उसमें और डिटेल्स रहती है, ज़्यादा डिटेल्स रहती है कि कौन सा काम किया है, कितना So it is consolidated. हाँ? Okay, partially he is correct. हम उस पर बाद में आएंगे कि resume और CV और बायोडेटा में कितना डिफरेंस है. Alright, अब तक इतना तो आपको समझ आ गया होगा. सबसे इम्पोर्टेंट है ना, LinkedIn पे काम नहीं करते. अब बहुत लोग होंगे अकाउंट है सर लेकिन हम यूज अकाउंट किस किसका LinkedIn पे? जय श्री कृष्ण. यूज कितने लोग करते हैं एक्टिवली? अनिल यार प्लीज. हाँ जी, यूज कितने लोग कर रहे हैं? कितने कनेक्शन में? 500 प्लस. अरे 500 प्लस तो 501 हो सकता है यार. नहीं बट ऐसा काउंट नहीं किया बट 500 प्लस है. 150 60 तो स्ट्रेंथ हो गया तेरे का. What else? Who else has LinkedIn? Who is using LinkedIn? I am telling you guys, LinkedIn today is your digital identity card. And yes, it's not a job platform. It's not a job platform. Yeah. Nee, but the point is that you should know how to even get opportunities from LinkedIn. I, in my good professional life, have never approached anyone for a job on LinkedIn. But yes, the way you communicate, the way you approach people might get you the job you are looking for, might get you the internship you are looking for. आपने बोला नहीं आपको चाहिए, but वो चल के आएगी आपके पास internship. चल के आएगी पे खुश होगा कुछ लोग अपने internship के बाद. Effective communication, adaptability, emotional intelligence. हाँ, emotional intelligence यहाँ भी चाहिए. Time management often overlooked during academic training. आप ये सब फैकल्टी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फैकल्टी ये सब कराएगी आपको. इमोशनल EQ कहाँ से लेके आएगी? और यहाँ पे अब तो जब से रील्स चले हैं EQ तो रूम टेम्परेचर से लो चला गया सबका, राइट? माथा टेके बिना सोते नहीं है रात को IG पे. अडेप्टेबिलिटी ये इतना गोल्डन वर्ड है बिकॉज इफ यू कैन नॉट अडेप्ट मतलब नॉट नाउ, इन फ्यूचर एनीथिंग यू आर आउट ऑफ द गेम. See, whatever employment you join, wherever you are, all right? आप एक जॉब में घुस गए, उसका ये मतलब नहीं आप वहाँ टिकोगे. ओके, मेरे पोस्टर में मैंने एक चीज लिखी थी, डिग्री ओपन्स द डोर, स्किल्स कीप इट ओपन. दैट इज व्हाट आई कॉल एज अडेप्टेबिलिटी. आर यू रिप्लेसेबल और आर यू इररिप्लेसेबल? एवरीबॉडी इज रिप्लेसेबल, बट टिल व्हाट एक्सटेंट? एलॉन मस्क का एक मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू. कोई अगर उन्हें कहता है ना कि आई वुड लाइक टू रिजाइन anyone from the managerial position, तो Elon Musk क्या करेगा? He will give a few $1 million to that person and say you go on a leave for a month or two, घूम के जो करना है कर. अगर उस 1-2 महीने के पीरियड में उसकी कंपनी का कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेगा. और अगर उस इंसान के ना होने से 1-2 महीने में उसकी कंपनी पे इम्पैक्ट आ रहा है ना, वो ज्यादा पैसे देकर उसको रिटेन कर लेगा. सेम हैपेंड विद सुंदर पिचाई मल्टीपल टाइम्स. दैट इज व्हाट इज अडेप्टेबिलिटी गाइस. मतलब इनके अलावा चल ही नहीं सकती कंपनी. ऐसा माइंडसेट कंपनी का हो गया. बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है BMM स्टूडेंट्स जहाँ पे जर्नलिस्ट की वजह से मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं. अर्नब गोस्वामी, क्या नाम है कंपनी का? रिपब्लिक भारत. ऑलराइट. सिमिलरली इफ आई से रवीश कुमार, यू नो इट्स गोइंग टू बी एनडीटीवी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, अभी तो छोड़ दिया उन्होंने. सुंदर पिचाई, गूगल, हमको मालूम है. ओके, सो व्हेन योर आइडेंटिटी डायरेक्टली रिलेट्स, यू बिकम द बेताज बादशाह और द बेताज एम्बेसडर ऑफ द कंपनी. मींस आप रिप्लेसेबल तो हो बट आपको कोई रिप्लेस करेगा नहीं. ऑलराइट, क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये है, ये आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी है, EQ है, टाइम मैनेजमेंट है. मैनेजरियल पोजीशंस पे जाना है, एक स्किल सेट आता है, 2 स्किल सेट्स आता है, हम PR में अच्छे, नेटवर्किंग में अच्छे, हम काम कर लेंगे, हाँ तो आप वो लोअर लेवल पे ही रहोगे, आप मैनेजरियल पे नहीं जा सकते. बिफोर कोविड इट वाज सच दैट एक काम के लिए एक एक्सपर्ट होता था. अब ऐसा नहीं है. अब एक काम के लिए 4 काम के लिए एक एक्सपर्ट चाहिए हमको. ऑलराइट. और अगर आप वो एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो तो फिर यू माइट हैव टू वर्क अंडर एज अ सबऑर्डिनेट अंडर समबडी हु इज इवन यंगर देन योर एज. और फिर बुरा भी नहीं लगना चाहिए. क्यों? क्योंकि आप या तो इंटर्नशिप स्किप ही कर देते हो, या तो क्या करोगे, अनरिलेटेड इंटर्नशिप्स करोगे जो आपके करियर या आपके इंक्लिनेशन से डायरेक्टली अलाइंड ही नहीं है. तो CV में दिखता है कि मैंने इंटर्नशिप्स की है. Let me tell you, by the time I graduated, good 24-25 internships I did. And I can say successfully 15-16 were waste of time for me. ये मुझे 17th और 18th internship में पता चला कि जो पहले किया ना कुछ किया ही नहीं, एक्चुअली कुछ नहीं किया. Alright.
दैट इज द रीजन आई एम हियर टुडे टू टेल यू कि जो गलती हमने कर ली आप लोग मत करो, क्योंकि हमारे टाइम पे भी थोड़ा समय अलग था, अब तो बहुत ही ज्यादा अलग है। करेक्ट? क्या हो जाएगा? गैप्स हो जाएंगे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में, जो चाहिए हो नहीं पाएगा। सर एक और ऑप्शन है, ओवरसीज से डिग्री कर लेंगे, तब तो बात ही खत्म। 20-25 लोग हैं, 20-25 लोग में मैं अकेला होऊंगा जो यूएस, यूके, आयरलैंड, कहीं से यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन से डिग्री करके बैठूंगा। ठीक है, विलायत से पढ़ लेंगे सब। देख लो विलायत से पढ़े हो कभी क्या हाल होता था। 25 to 30 are unable to secure jobs in India. एक इसमें मजेदार किस्सा बताता हूँ। I had plans of doing my LLM, that is Masters in Law, from Ireland. Okay, but this gentleman explained to me that why do you even want a master's degree? Not just in law. मतलब मैंने BMM के बाद मैंने MBA भी नहीं किया, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। So this gentleman explained why do you need an LLM? And if you need an LLM, why do you need it from Ireland? So I explained. So sir, XYZ reason है। कहते no. If tomorrow I am going to practice here in India, if my client base is here in India, तो वहां से डिग्री करके करना क्या है? जितना टाइम मैं वहां पर हूँ, मेरा यहाँ जो नेटवर्किंग हो सकता है, यहाँ जो मैं लीड डेवलप कर सकता हूँ, होने ही नहीं वाला। मेरे को यहाँ के मार्केट को समझना है, तो वो मुझे यूएस में बैठा हुआ बंदा कैसे बताएगा? या तो यूएस जा रहे हो तो यूएस में जॉब कर लो। टॉपर्स, रैंकर्स, ऑल दोज पीपल हु हैव बीन flag bearers of their department in terms of academic achievements, you will see them miserably fail as soon as they are moving out. क्यों? Because they feel अरे हम तो बहुत हम में अच्छा है, नहीं है। वो जाओगे वहाँ मालूम पड़ेगा, वहाँ पे हर चीज चेंज हो जाती है। The people you deal with, the way they deal with you, ठीक है? The way the curriculums are, all right. Here the level of assignments you people are doing, that is not even countable as per the US standards. वहाँ पे आपको असाइनमेंट्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको 2-3 महीना देंगे एक असाइनमेंट के लिए। That will have 200-300 marks. और अगर वो काम नहीं कर पा रहे हो आप, टाटा बाय बाय। So even if you are studying in overseas, I barely feel you will be able to secure a job in India. काफी लोग हैं जो जाते हैं बाहर और बाहर से रिटर्न आते हैं, क्योंकि ना वहाँ कुछ, क्योंकि इफ यू गाइस डोंट नो, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ यू आर अवेयर, जितने भी होते हैं ना ये एजेंसीज एंड ऑल, गो अब्रॉड, स्टडी इन दिस, वो क्लियरली मेंशन करते हैं यू विल नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट। कोई प्लेसमेंट सेल नहीं है वहाँ पे, कोई प्लेसमेंट सेल नहीं है, आपको अपने बूते पे ढूंढनी है जॉब। अरे तो जब वही हाल वहाँ होना है, मैं वहाँ जाऊँ क्यों? करेक्ट? There are very selective industries जहाँ पे उन particular degrees का बहुत weightage है। Apart from that, there is absolutely no weightage. All right. In certain fields, I'm not saying in all industries, but in certain fields. Industry leaders क्या बोलते हैं इसके लिए? एक simple college degree के लिए या कोई भी qualification के लिए? Satya Nadella, what that guy says, certifications and degrees are only part of equation. The real challenge is having growth mindset and adaptability to thrive in dynamic environments. Alon Dada, what does he say? Degree is not a prerequisite for innovation or capability. Passion and proof of work matter for more. Because he started his first company when he was 13 years of age. Jack Ma. Education should focus on teaching students how to think, not just what to know. इसका क्या difference क्या है? How to think and not just what to know. Can someone explain this to me? Anyone? No right wrong answers, just your interpretation. I would like to know your interpretation. Anyone here? नहीं? एक भी नहीं है? ये कोई भी इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा? क्या मतलब है इसका? ग्रेजुएशन कर रहे हो आप लोग, कोई सिंपल इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा? Yes? How to think and not just what to know. जो आप पढ़ रहे हो is what you know. दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो बोलते हैं जो उनको मालूम है, और दूसरे जिनको मालूम होता है मैं बोल क्या रहा हूँ। आप बोलोगे 1 + 1 2, क्यों 1 + 1 2? आप बोलोगे होता है, हाँ बट क्यों होता है 1 + 1 2? ए ऐसा का क्यों दिखता है? आप बोलोगे ए कैसा है, हाँ आपको मालूम है ऐसा दिखता है, दैट इज व्हाट यू नो। व्हाई इज ए लाइक दैट? डू यू नो दैट? नो। सो एंड ऑफ द डिस्कशन। आई नो व्हाई ऐसा दिखता है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी। सी, एनी इंडस्ट्री यू एंटर, क्यूरियोसिटी इज द ओनली थिंग गाइस। और अगर वो नहीं है आप में, आई एम रियली स्केप्टिकल, हाउ विल यू मेक अ मार्क? आएगा क्या?
ये सब है जो आप लोग आई थिंक इसके पहले भी करते हुए आए हो. एंटरटेनमेंट, इंस्टा, यूट्यूब, 3 से 4 घंटे एवरेज दिन का डालना है, मतलब डालना है, नहीं तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा. कैसे हम लाइक नहीं ठोके, किसी का डीएम हम कैसे बॉम्बास्ट नहीं करें, मैं भी करता हूँ. लेकिन जब मेरे पास फ्री टाइम के अलावा भी टाइम है, व्हेन आई एम इन ट्रांजिस्ट या कहीं और, तो ठीक है. फ्री टाइम होता है तो मैं आईजी पे तो नहीं जाऊंगा. ऑलराइट, क्योंकि देयर इज अ सिंपल थिंग, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई एम गोइंग टू लिव. तो फ्री टाइम मेरे पास कलेक्टिवली कितना है मेरे को नहीं मालूम. तो जितना है उसमें जितना कर सकते हो कर लो, इज व्हाट आई बिलीव. Incorrect approach क्या है? 65% of students more on not learning to pass exams than engaging in practical experiences. Over involvement, इसमें शायद मैम आप लोग ऑफेंड हो सकते हो. I would like to beg your pardon. कॉलेजेस में इवेंट्स होते हैं, कमिटीज हैं, हर चीज है, उसमें भी ओवर इन्वॉल्वमेंट खराब है. ओवर इन्वॉल्वमेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जाओ ही मत, जाना तो है ही नहीं, तो प्रैक्टिकल कहाँ से आएगा, एनालिटिकल कहाँ से आएगा. ये तो फाउंडेशन टाइम है. इररिलेवेंट जगहों पे जा रहे हो, फिर बोल रहे हो यार वो कमेटी में इतना टाइम है, प्रमोशन में इतना टाइम जा रहा है. अरे आपको करना है क्या? अगर करना है तो जाओ, नहीं करना है तो फिर अननेसेसरी किसी पे इंप्रेशन डालने के लिए क्यों? किसी का खाली नंबर मिलना है इसके लिए चलो हम ये यहाँ गए, हम भी जाते हैं. ठीक है, क्या किया है क्या ऐसा कुछ? अरे बाबा, ये तो यहाँ डिस्कस मत करो अगर किया है. ठीक है. So over commitment is also not good. You should know where and why you are giving your commitment and time. See guys, these are of utmost importance. और भी है, सबसे बड़ी खूबी हमारे जीवन की प्रोक्रेस्टिनेशन. आज किया कल कर लेंगे, कल का परसों कर लेंगे. 30% of Indian students feel they could have utilized their free time better but lack motivation and direction. जब ईयर एंड होता, ईयर एंड छोड़ो, एक प्रैक्टिस मेरे एक सर ने मुझे बताई थी. When I asked him के what should we do to become successful in this industry, उसने बोला तेरा पूरा दिन खत्म होगा ना, तो पूरे दिन को रिवाइंड मार और एक चीज सोच कि ये दिन तू और बेटर यूज कर सकता था क्या. अगर आंसर हाँ है तो यू विल ऑटोमेटिकली गो इन रिग्रेट कि क्यों नहीं किया. अगर ये प्रैक्टिस आप लोग भी करनी शुरू, ये देखो थोपड़े पे 12 बजा के ना सीरियसनेस पे लाके काम नहीं होता. मेरे से तो बिल्कुल नहीं होता, मेरे ऑफिस में भी अलाउड नहीं. सीरियसनेस के साथ काम होना चाहिए. इधर सीरियसनेस रिलेशनशिप में कहीं नहीं, वर्क में नेवर. जितना हेल्दी, इफ यू आर लाइकिंग व्हाट यू डू, हंस के काम करो ना, मुंह पे 12 बजा के क्या है. एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ सेइंग, नोबडी लीव्स बैड जॉब्स, दे आर लीविंग अ बैड मैनेजमेंट और बैड टीम लीडर्स. करेक्ट, कंपनी को ही नहीं छोड़ रहा, खराब लीडर्स छोड़ रहे हैं. दैट इज ट्रू. और उसके बाद इसमें भी बहुत चीज है, बट this is how it goes. Quantity internships का मैं बता चुका हूँ, तो I would not bore you again on that. But peer pressure and peers toxic होते हैं, या मैं ऐसे बोलूँ मोस्टली peers ही toxic होते हैं, वो पता नहीं चलता. कैंटीन में बैठे चल भाई COC या COD या कुछ भी और, वो आपको नहीं मालूम है कि वो टॉक्सिसिटी है. खाली टाइम अगर आप लोग किसी भी XYZ प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो, आपका फ्रेंड आपको प्रमोट कर रहा है, ये मेरा पार्टनर इन क्राइम है, पार्टनर इन क्राइम जेल भी जाना उसके साथ है, बढ़िया. ये सब टॉक्सिसिटी है. ये आप लोग को अभी फ्रेंड है या फ्रेंड दफा हो जाएगा 3 साल के बाद कहीं. कंपेरेटिव एनालिसिस फ्रेंड करने नहीं बैठा है, वो आपके घर वाले करेंगे फिर बाद में बहुत अच्छे से. सेम कॉलेज था, सेम प्रोफेसर था, सेम बैच था, काय को वो यहाँ पे, तू इधर क्यों है. ये होता है, आई एम टेलिंग यू. जितना COD खेलना है, जितना क्लैश ऑफ क्लैंस खेलना है, जितना PUBG, शौक से खेलो, बिंदास खेलो. बट अगर दूसरी चीजों में एस्टैब्लिश्ड हो तो, अगर नहीं हो, ऐसे और भी दूसरे और प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल तो बहुत चल रहे हैं, है ना. टिंडर है, बम्बल है, हिंज है. मैं किसी पे नहीं हूँ प्राउडली. रीजन इज बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इट इज डूइंग टू योर ब्रेन्स. ब्रेन और माइंड में भी डिफरेंस है. बट एनीवे व्हाट आई एम ट्राइंग टू इम्प्लाई, ये सब टॉक्सिसिटी है. चिल मारते हैं जाके कहीं पे, मारो चिल मारो, बट फिर तुम चिल्ड ही रहोगे, वो हीटअप होने ही नहीं वाले. और आगे टाइम नहीं. देखो कॉलेज का टाइम एक ऐसा ही टाइम है ना जहाँ पे सीख सकते हो गाइस. बाद में सीखने का टाइम नहीं, बाद में अप्लाई करने का टाइम. बाद में अगर इम्प्लीकेशन पे नहीं उतर रहे हो ना, कोई किसी को तुम्हारा कोई गरज नहीं है. मैं सच बता रहा हूँ, मेरा भी किसी को गरज नहीं है. मैंने अपनी गरज बना के रखी है, इसके लिए हम देर.
दिस इज अ बेटर रियलिटी एंड इट इज ट्रू. नोबडी नीड्स यू. तुम्हारे जैसे 5000 बार बैठे हैं और सबको हम रोज रिजेक्ट करते हैं. ठीक है, यू विल बी इन डायर नीड्स ऑफ वर्क. हमको तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है पक्का, बट आपको हमारी है, हमको भी किसी की है. करेक्ट. दैट इज वेयर द एंटायर क्वेश्चन ऑफ बीइंग रिप्लेसेबल और इररिप्लेसेबल कम्स इनटू पिक्चर. आपका एक फ्रेंड आपको इंस्पायर कर रहा है ना, पबजी खेल, उसको बोल तू बंद कर और चल किधर, बुक पढ़ने नहीं, वो मैं खुद फाड़ दूंगा. खाली टाइम में बुक पढ़ना इज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग जॉब्स टू डू इन माय ओपिनियन. मतलब नॉवल वगैरह में वैसे भी नहीं पढ़ता, बट एनीवे, बट कुछ और कर यार. 3 साल मिल रहा है, 3 साल कैसे यूटिलाइज करोगे तुम लोग. ठीक है, even going for movies or see again the point is that it's not about you don't do it at all, but if you have time for it, ये आपका सारा बेड़ा पार करेगा. this one law of giving and law of receiving. शायद MBA में आप लोग को पढ़ाया जाए, मैंने तो की नहीं है, बट शायद आप लोग को पढ़ाया जाए. लॉ ऑफ गिविंग एंड लॉ ऑफ रिसीविंग बहुत सिंपल है. क्विक क्वेश्चन नाउ, जो आंसर देगा मेरे साइड से उसको एक ऑफर मैं दूंगा आज. ठीक है, गुड प्लेसमेंट ऑफर आएगी. क्वेश्चन इज दैट, लेट्स से आपके पास में कुछ सेट ऑफ क्लोथ्स है जो आपको डिस्कार्ड करना है, तो आपने सोचा किसी गरीब को दे देते. आपके साथ क्या हुआ मुझे वो बताओ. हाथ रेज करना. आपके साथ क्या हो रहा है मुझे वो बताओ. कपड़े थे, आपने किसी को दे दिए, तो आपके साथ क्या हुआ. आपने तो दे दिए. व्हाट हैपेंड विद यू? रेज योर हैंड एंड टेल मी. कम ऑन. यस, वॉर्डरोब खाली हो. वार्डरोब खाली हुआ. स्पेस फॉर न्यू क्लोथ्स. जिसको नीड है क्लोथ्स की उसको भी clothes वो तो उसके साथ हुआ ना, अपने साथ क्या हुआ मैं वो पूछ रहा हूँ. की need हम लोग को पूरी की है. हाँ, पर हमारे साथ क्या हुआ. जानू सोना ने बोला चलो CCD, चलो स्टारबक्स, चलो ब्लू टोकाई. अरे तुमने तो पिला दी, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो तुम्हारा अकाउंट खाली हुआ. इतना लिबरल नहीं होने का भाई. राइट, व्हाट ही सेड इज आल्सो राइट एंड ऐड ऑन उन्होंने किया. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीस टू पीपल फर्स्ट. वो हंसने की बात नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल बात बोली. तेरा वार्डरोब खाली हुआ, बट वार्डरोब खाली हुआ तो क्या हुआ, नई चीजों के लिए जगह बन गई. ये आपके साथ हुआ. सारे कपड़े दे दोगे क्या दान में? नहीं दोगे, सिलेक्टिव दोगे. जगह बन गई तो कुछ भी उठा के ले आओगे क्या? क्या करोगे? ये है लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग. पता होना चाहिए क्या देना है, पता होना चाहिए क्या हमको चाहिए. यही नहीं समझते हैं कोई भी इंडस्ट्री में, यही चीज नहीं समझ रहे. ये समझ जाओगे तुम्हारा पूरा फोकस क्लियर है. तुमको कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुमको ये मालूम है what you want and what you can deliver. इंटरव्यूज में जाते हो, why should we hire you for this job? पूछते हैं ना, क्या आंसर देते हैं आप लोग उसका. और इसमें कोई राइट रॉन्ग आंसर होता ही नहीं है. ये HR टू HR डिपेंड. कोई HR का है क्या यहाँ पे? एक बार मैं इनवाइटेड था एक जॉब के लिए, तो उन्होंने सामने से ऑफर दिया था, मेरे को पूछ रही है why should we hire you. मैं कहा तूने मुझे बुलाया है, तुझे पता होना चाहिए why do you need me. I don't know why do you need me. ऐसा हुआ है. ऑलराइट. एंड ये भी एक बड़े जर्नलिस्ट का, आई वोंट नेम दैट पर्सन नाउ क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है. सो सिंपल सा फंडामेंटल है दैट व्हाट यू वांट शुड बी क्लियर. अब आप दोनों को क्लियर है, सबको क्लियर हो गया मैंने क्या बोला. अब और एक क्वेश्चन, डील इस पे लॉक हो गया बाय द वे. अब मेरे को बताओ, मान लो मैं एम्प्लॉयर हूँ. अब आपका सब टेस्ट होगा. अभी जितना भी मैंने प्रवचन दिया है ना, आप लोगों को मैंने बोला 80,000 पर मंथ की जॉब है, कौन कौन करना चाह रहा है? पूछ रहा हूँ. 80,000 की जॉब है, कौन कौन करना चाह रहा है? तो मैंने आप में से किसी को हायर कर लिया. अब आप लोग आ गए हो एंड लेट्स से वन फाइन डे यू कम टू. आप लोगों ने जॉब किसके लिए की है? मेरे लिए की कि 80,000 के लिए की है? 80,000 के लिए की. याद रखना अपने शब्द. अब आप लोग आए एक दिन, मैंने बोला केविन मैम, और मैंने मुंह पे फेंक के मारे पैसे. मैं कहा लेना ले नहीं तो निकल. मंथ एंड है, सैलरी मिलनी है, सैलरी दिया ना, मुंह पे फेंकी. लेना ले नहीं तो निकल. क्या करोगे? लेके चले जाएंगे. कौन है लेके चला जाएगा? लेके चला जाएगा ना. हाँ केविन मैम. और कौन कौन है जो लेके चला जाएगा?
हाँ ये ब्लेम गेम मत कर रहे। हाँ कौन है जो लेके चला जाएगा और कौन है जो बोलेगा नहीं यार आत्मसम्मान बड़ा मेरा, मैं कौन खाम बट मेरा आत्मसम्मान। हाँ लेके चले जाओ, लेके चले जाओ। करेक्ट आंसर इज लेके चले जाओ, क्योंकि काम कर रहे हो पैसे के लिए। अब इसमें क्वेश्चन है, अरे तो क्या सेल्फ एस्टीम गिराएंगे क्या? अरे सेल्फ एस्टीम वो क्या करेगा तुम्हारा सेल्फ एस्टीम? अंडरस्टैंड इमोशन इज अ वेरी टेम्पररी थिंग। इनफैक्ट अगर कोई मैं किसी के साथ करूं वो पैसा उठा के चला जाए, मैं शॉक में हूँ, कबीला क्या कौन था भाई ये लेके चला भी गया, मेरे को शॉक हो जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ऐसा करना नहीं है, बट ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट दिस इज द अप्रोच। मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, तेरे लिए काम नहीं कर रहा। मेरा क्लैरिटी है। द डे आई पिक अप दैट मनी एंड वॉक आउट, वो आएगा पीछे, वो बोलेगा क्या भाई, क्योंकि उसको तो वही लग रहा है ना, नहीं करेगा, नहीं लेगा पैसा, मेरा 80,000 बचा नहीं। मैंने कहा थैंक यू, है ना, मेरे को तो चाहिए भाई, पैसे तो चाहिए ही चाहिए। That is what is law of giving and law of receiving. Be clear in your head. There is only one person who can insult yourself is you, and there is only one person who can respect you is you, क्योंकि और तो कोई करता नहीं। मैं सोचूं कि मैं किसी को बोलूंगा मेरी बड़ी इज्जत है, चांटा मार दे मेरे को 4 लोग के सामने, क्या मतलब? खुद की इज्जत करके क्या है यार, मतलब है मैं बाइपोलर? अंडरस्टैंड दिस। रिस्पेक्ट, इंसल्ट, दीज आर ऑल सब्जेक्टिव अफेयर्स ना। किसी के लिए कुछ, जैसे वेज एंड नॉन वेज, फॉर सम पीपल हैविंग वेज इज ओके, फॉर सम नॉन वेज ओके। माय पॉइंट इज दैट ये क्लियर रखो, वेयर यू आर, व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाई आर यू डूइंग इट। सेम गोज फॉर कम्युनिकेशन। तो थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। अभी इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। दीज आर थिंग्स व्हिच वी एज एम्प्लॉयर्स वी लुक अप टू। कम्युनिकेशन स्किल मतलब सर इंग्लिश अच्छी बोलनी आती है। देयर वाज वन ऑफ यू ओनली हु केम टू मी, again I won't name that person. That lady came to me, sir, you know I am a ranker and मेरा ऐसा, can you get me a job in the media? वो BMM से नहीं पाया, तो ढूंढने मत लग जाना। तो मैंने कहा okay, you give me a call, we'll discuss. जब उसने बोलना शुरू किया ना, मेरे को लगा इसने 10th पास कैसा किया मेरे को नहीं पता। रैंकर होना छोड़ दो, वो 10th पास कैसे किया, I was in question. Communication means what? Verbal. मैंने क्या लिखा है? Clarity, persuasion and public speaking. That is what is needed. अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो, वो क्या अच्छी है, मैंने वो नहीं लिखा है वहां पे। Clarity होना चाहिए। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये मुझे मालूम है मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये मुझे मालूम है, और मैं क्यों बात कर रहा हूँ ये भी मुझे मालूम है। ये है क्लैरिटी। इसमें से अगर एक भी सेटिस्फाइड नहीं है, मैं यहाँ खड़ा नहीं रहूंगा। दैट इज क्लैरिटी। पर्सुएशन, इन्फ्लुएंस करना, नॉट रियली, बट आपका ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, आप लोग का ध्यान नहीं जा रहा है, मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं है। आई हैव टू इंश्योर कि आप लोग का ध्यान जा रहा है। दैट इज द पॉइंट। रिटन, इफेक्टिव ईमेल ड्राफ्टिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ दीज आर अगेन जहां जरूरत होती, कई जगह जरूरत नहीं होती। लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सपेक्टिव, सुनने की आदत तो किसी में नहीं है। हियरिंग और लिसनिंग में क्या फर्क है? एनीवन? हियरिंग, लिसनिंग, एनीबॉडी? नहीं मालूम ही नहीं। वाह, किसी को नहीं मालूम हियरिंग और लिसनिंग में क्या फर्क है? यस। हियरिंग मतलब जैसे ये कुछ बोल रहा था, हाँ बोलते रहे, सुन रहा हूँ। और लिसनिंग मतलब जैसे हम लोग आपको जैसे लिसन कर रहे हैं और सब लोग। अरे नसीब, थैंक यू। नहीं बराबर है, ठीक है, बट इसका एक थोड़ा और ब्रीफ है। चल इसका एक ब्रीफ है। ये सिस्टम का आवाज आ रहा है कुछ, तो कोई उधर ट्र कर रहा है, किसी का कुछ, हाँ मैंने खाना खा लिया, आपने खाया क्या? कान में आवाज जा रही है, वो हियरिंग है। हियरिंग हम रोक नहीं सकते। लिसनिंग में फोकस करके किस पे सुनना। कमौलिका मालूम है ना? हाँ, और देखो ये सब ध्यान इधर है, कान किधर है? तो बात तो कोई कर रहा, वैम्प होती है ना टीवी सीरियल्स की, बात तो इधर, ध्यान इधर है, कान उधर। शी इज हियरिंग दिस बट लिसनिंग समथिंग एल्स। कान कहीं और है, आंखें हैं, कान कहीं और है, ठीक है, कहीं निगाहें, कहीं निशाना, ठीक है। नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप वो नहीं है प्लीज। Again, I would beg to differ. Building meaningful professional connections, leveraging network for mentorship and job opportunities,
एंड ऑल ऑफ दैट. अच्छा ये चीज मुझे बहुत अच्छे से पता चली लॉ में आने के बाद, क्योंकि ना पहले मेरा ऐसा एटीट्यूड था कि यार अगर इंटर्नशिप कर ली इसकी शक्ल ही पसंद नहीं, छोड़ दिया, अब ब्लॉक पे डाल दूंगा मैं इसको, कभी शक्ल नहीं देखूंगा इस एम्प्लॉयर की अगली बार. फिर मुझे मालूम पड़ा लॉ में ऐसा नहीं चलता. लॉ में तो आज जो नेटवर्क बना वो आपको डेथ बेड तक काम आने वाला है. ओके, दैट इज व्हाट आई कॉल एज नेटवर्क इन रिलेशनशिप बिल्डिंग. मैं काम एक जगह कर रहा हूँ लेकिन आज तक जिससे कनेक्टेड हूँ मुझे काम सब जगह से आना चाहिए. आप फर्क समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आज आप जिससे कनेक्ट कर रहे हो, अगर कल उससे आप काम निकलवा नहीं पा रहे हो या वो आपको याद नहीं रख रहा है तो वो नेटवर्किंग हुआ ही नहीं बॉस. वो फिर एक चीज है, मैं तुलसी तेरे आंगन की है खड़ी है, ओके डन, रोज आओ पानी डालो खत्म बात. टाइम मैनेजमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम में तो इनहेरेंटली है ही नहीं. प्रायोरिटाइजेशन, डेलीगेशन, अवॉइडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, ये टाइम मैनेजमेंट के पहले कुछ नियम हैं. एंड सच बताता हूँ टाइम मैनेजमेंट ही है जो मेरे को यहाँ तक लेके आया. थैंक्स टू माय गॉडफादर्स इन द इंडस्ट्री, थैंक्स टू ऑल द फैकल्टीज हु आर हियर, नॉट बिकॉज दे आर हियर, आई एम सेइंग ये सच में है. Because at the moment I am doing one internship which is on virtual. Tomorrow I am leaving for Kerala for my another internship. Okay, I am doing my full time job. I am also a music teacher. तो ये सब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से है, और मेरा खुद के भी पेजेस चलते हैं, तो ये सब टाइम मैनेजमेंट से ही है. ओके, हैप्पीली विदाउट डार्क सर्कल्स. बाय द वे मैं कोई CTM नहीं कर रहा हूँ रोज का, लड़कियों को पता होगा CTM. अरे क्वेश्चन मार्क है, क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग है. क्या हो रहा है यार, इतना स्किन केयर, कम ऑन. SB है उसमें सनस्क्रीन, बट ब्लेंडेड विद द मॉइस्चराइजर फर्स्ट, ज्यादा बेटर है. Next is the makeup profession you're looking for. Who, me? Never in my life. You are elaborately telling this that the next profession, makeup surely. No, I had to learn it simply because we face the camera as journalists. तो बेकिंग क्या, वो कौन था ये? कौन है भाई, वो क्या? कौन था तुम? तो क्या हो गया? इसका तो नहीं करूं, के ब्यूटी ले लूं, शुगर कॉस्मेटिक, क्या कुछ है कुछ? नहीं, आई एम अ लॉयल कस्टमर टू कोडा. सिर्फ बोलने के लिए, ठीक है? मैं सेफोरा नहीं जाता. ये क्या होता है? मैसेज कर, मालूम पड़ेगा क्या होता है. हाँ वही है. Entrepreneurial mindset. Two mindsets which you see in any workspace. एक होता है employee mindset, जो जनरली हम में से काफियों का इनिशियल स्टेजेस पे होता है कि हमको तो जॉब करनी है, एंड आप हायर पोजीशंस पर तब आते हो जब आपका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट हो जाता है. यानी कि क्या है, किसी भी इंडस्ट्री का जब आप बिजनेस पार्ट समझ जाते हो ना गाइस, इररिप्लेसेबल. मेरे सामने कोई बंदा बैठा है, मैं उसको 25,000 30,000 महीने का भी दूं, वो मेरे लिए बिजनेस भी नहीं लेके आ रहा, तो वो क्यों है यहाँ पे? एंड ऐसा कुछ नहीं होता. ऑफिस वर्क स्पेस फैमिली टाइम, कोई फैमिली घर पे खाना खा के सो गई, ये फैमिली. वर्किंग प्रोफेशन में, ये वर्क प्रोफेशन में, सॉरी, कौन सा बंदा बिजनेस लाके दे रहा है मेरे को? सेल्स की बात नहीं कर रहा मैं, और कौन सा बंदा बिजनेस लाके दे रहा है, कौन मेरे बिजनेस को समझ सकता है, वही उसी को तो मैं ऊपर उठाऊंगा. मैं और किसी को क्यों उठाऊं? मैं मीडिया में जब घुसा एज एन एम्प्लॉय, अरे डिफेंस जर्नलिस्ट बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वॉरशिप्स पे जा रहे हैं, सबमरीन्स में जा रहे हैं, फाइटर जेट्स में जा रहे हैं, सब किया हुआ है. लेकिन फिर मुझे मालूम पड़ा इतने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जॉब में तो 24 घंटा तलवार गर्दन पे, आज नहीं तो कल कटोगे. जहां रिसेशन आए खत्म, और कोई FD नहीं बचा सकती उसमें, पक्की बात. फिर मुझे समझ आया मुझे मीडिया बिजनेस समझना पड़ेगा. मेरी ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे कर रही है, बिजनेस कैसे, किस क्लाइंट को ये लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं, किस एडवर्टाइजर के पास कैसा पिच लेके जा रहे हैं, उसी के पास क्यों गए, उसी कंपटीटर के पास क्यों नहीं गए. अरे ये छोड़ो यार, मैगजीन में कौन से पेज पे किसका एड प्लेस होगा और उसके बाजू में किसका प्लेस होना, ये भी बिजनेस है. इसके लिए भी माइंडसेट चाहिए. एंड ये सबसे बेस्ट सीखना है स्टार्टअप्स, वेयर यू कैन क्लोजली अंडरस्टैंड कि ये धंधा कैसे करते हैं. बड़ी फर्म्स में जाओगे तो 9 to 5 ही मिलने वाला है, कोई तुमको बिजनेस नहीं सिखाने वाला है. लेकिन स्टार्टअप्स में क्योंकि इन्वेंट्री उनकी कम होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपको यही चीजें सिखाते हैं. फिर आती है एक बड़ी बात, ग्लोबल एंड कल्चरल अवेयरनेस. दिस इज लाइक समवॉट इम्पोर्टेंट. मल्टीलिंगुअल स्किल सेट्स एंड ये सब आपको काम आते हैं व्हेन यू आर ट्रैवलिंग ओवरसीज और समवेयर. ये जानना इंपॉर्टेंट है, बट मैं नहीं बोलूंगा वन ऑफ द मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट है तो अच्छी बात है, अनदर फेदर इन द कैप. डेटा लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है.
डेटा को कैसे एनालाइज करना है, मैट्रिक्स कैसे आपको डिकोड करना है, ये सब बहुत बड़े एज है गाइस। सच में मेरी बात मानो, मैंने सिर्फ जब मैंने अपना करियर शुरू किया था ना, मुझे सिर्फ कैमरा फेसिंग आती थी और लिखना आता था। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली आई स्टार्टेड एडिटिंग आर्टिकल्स आल्सो, प्रूफ रीडिंग देम, डिजाइनिंग इन्फोग्राफिक्स, डिजाइनिंग कवर पेजेस, खुद की वीडियोस को एडिट करना भी सीखा, ग्राफिक आर्ट कैसे करते हैं वो भी सीखा। इसके लिए वो एज मिलते 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 क्यों, क्योंकि मेरे को डेटा एनालाइज करना आता था। इधर क्लियर है, वो बनाना नहीं आ रहा यार, तो वो सीखा। यही सब चीजों से ऊपर आए हैं। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, अब मजाक लगेगा लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक बात बोलते हैं, जिसको स्ट्रेस लेना आता है ना, वो कोई काम करने के लायक नहीं है, भूल जाओ। स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सप्लॉइट हो जाओ, प्लीज। मेरे को तीसरे दिन माइग्रेन हुआ, मैंने चौथे दिन रेजिग्नेशन डाल दिया था हैप्पीली, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट स्ट्रेस का मतलब टेंशन नहीं है। स्ट्रेस का मतलब है आप सैटरडे संडे मंडे तीनों दिन का खाना एक ही बार में लेके खा रहे हो, तो बॉडी का स्ट्रेस होगा ना। बॉडी टेंशन में नहीं आएगी, बॉडी स्ट्रेस में आ जाएगी, ये क्या कर रहा है, ठीक है। ब्रेड क्रमिंग करोगे, डबल डेटिंग करोगे, तुम स्ट्रेस में हो, वो नहीं है, करेक्ट। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब होता है हम अपने सेटबैक से सीख रहे हैं बिना मोटिवेशन को लूज करें। आप लोगों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अभी किसी को खड़ा करके बोल दो ना, क्या बकवास काम करता है, अभी उठ के निकल जाओगे बाहर, क्योंकि क्रिटिसिज्म लेना नहीं आता। आपको क्या लग रहा है, मैंने आपको बोला, मैंने तुम्हारे काम के लिए बोला, तुम्हारे काम को बोला, तुमको नहीं बोला। हमारी आदत क्या है, पर्सनली सब ले लो, मेरे को ऐसे कैसे बोला, तू है कौन है, तुझे नहीं बोला, तेरे काम को बोला। क्रिटिसिज्म को सुनना और लेना सीखो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेना सीखो। अरे वो निर्वाण था या स्पॉन्सर, मैंने बात करके रखी थी, वो चला गया, बहुत शाना बन रहा है। आपके काम को बोला जा रहा है, आपको नहीं बोला जा रहा। जब ये सीख जाओगे ना कि मेरे काम के लिए बोला है, मुझे उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा, और जहां ये ले लिया मुझे बोला है, तब तो लाइफ टाइम तुम बैठे रहो। मैं गारंटी देता हूँ 30-35 से ऊपर जाओगे नहीं सैलरीज में, तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे। मुश्किल से जा जाके कुछ चेंज करते 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 कहीं और मिल गया, कुछ इंडस्ट्री घुस गया, उसमें करियर स्विच मार लो, पक्की बात। आई हैव एंश्योर्ड इन माय लॉ, मेरा जर्नलिज्म पूरा जो मैंने डिफेंस जर्नलिज्म किया वही मुझे काम आ रहा है, सारे नेटवर्क्स काम आ रहे हैं। ये और एक रामबाण है, टेक क्रिटिसिज्म टू हेड नॉट टू हार्ट। चाहे वो फैकल्टी ही क्यों ना दे, शुरुआत उधर से ही होगी। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट गाइस। ये नहीं समझ सकते हो, बी एन एवरेज इन द क्राउड, जिंदगी तुम्हारी है। इसीलिए आप लोगों के लिए और एक चीज, किन सवालों का एक्चुअली जॉब इंटरव्यूज में मतलब क्या होता है। जब आप जॉब इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो, ये सवाल पूछे जा रहे हैं, इसका एक्चुअली मतलब क्या है, क्या जानना चाह रहे हैं तुमसे, और तुम क्या अज्यूम करते हो। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ओह यू नो व्हाट आई एम, मुझे तो सब लजानिया पसंद है, घर पे खा। कैंडिडेट बोलता क्या, कैंडिडेट क्या बोल रहा है, उसके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी में क्या है, वो अपने आप को समराइज कैसे कर रहा, उसको वो देखना है। उसको ये नहीं देखना है कि तुम प्रेस ऑन नेल्स लगा के आए हो या तुमने सैटिन की शर्ट पहनी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसको ये फर्क पड़ रहा है, देखो एक कॉमन सेंस लगा देगा इस। आप सबने अपना सीवी दिया होता है ना अप्लाई करने के टाइम पे, तुमको लगता है उन्होंने देखा नहीं होगा तुम्हारा सीवी, या उन लोगों ने रेज्यूमे पढ़ा नहीं होगा, और अगर पढ़ा है तो ये क्यों पूछ रहे हो बोलो। मेरे दिमाग में पहले यही आया था। इनफैक्ट मैंने पूछा भी एक जन को, बोला कैन यू गो अबाउट योर सीवी थ्रू, कैन यू गो थ्रू योर सीवी फॉर मी। मैं कहा व्हाई डिडंट यू रेड इट एंड कम फॉर द इंटरव्यू। वो बोल रहे एम्प्लॉयर मैं हूं। मैं कहा तो आपने बोला गो थ्रू योर सीवी, मैं क्यों बोलूं, आपको भेजा था, आपको पढ़ के आना चाहिए। लेकिन तब मेरे पास एक जॉब थी पहले, इसकी वजह से नहीं तो मैं हिम्मत नहीं करता बोलने की, ठीक है। तो उनको देखना है कि आप बोलते क्या है। बट कैंडिडेट्स ऑफन प्रोवाइड अ क्रोनोलॉजिकल लाइफ स्टोरी और इररिलेवेंट पर्सनल डिटेल्स। सबसे पहले आपको बोलेंगे गुड मॉर्निंग मीनाक्षी, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। माय नेम इज मीनाक्षी एंड आई एम दीस मेनी इयर्स ओल्ड। लड़का ढूंढ लो मेरे लिए। ये नहीं बोलना है सब यार, प्लीज अवॉइड दैट, इग्नोर दैट। उसको पता है ना नाम क्या, क्यों वापस नाम बोलना है तुमको। Why should we hire you? To evaluate the candidate's self-awareness and ability to align their skills. यही उनको सुनना होता है। हम तुमको क्यों हायर करें, क्योंकि सर लॉ ऑफ गिविंग रिसीविंग, तुमको ये काम चाहिए, मैं डिलीवर कर सकता हूँ। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता है ये लोग, बहुत बहुत मजा आता है मेरे को उसमें। हाउ आर यू यूनिक फ्रॉम द रेस्ट, हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, सिटिंग आउट। आई डोंट नो इफ आई एम यूनिक, दैट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन टू आस्क। हाउ विल आई नो इफ आई एम यूनिक। यार मैं थोड़ी उनसे बात के गप्पे थोड़ी मार रहा था, तो मुझे नहीं मालूम कि वो मेरे से यूनिक है या मेरे जैसे हैं। मुझे इतना मालूम है तुमने ये काम बोला मैं कर सकता हूँ।
लेकिन फिर भी अगर वो सवाल पूछे, I don't know if I'm unique, but these are some additional things that might add on to my potential for being a good candidate for the role or for the opportunity per se. अपने को क्या लगता है? Assuming this is an opportunity to boast or provide generic answers. ये गलती हमारे यहाँ भी होती है, करते हैं लोग. I might have taken till date more than 250 interviews. पक्की बात है, क्योंकि मैं HRs पर ट्रस्ट नहीं करता, मेरे ऑफिस के, ठीक है. तो वो लोग यही करते हैं कैंडिडेट्स. एक लड़की आई थी ऐसे ही, बहुत बड़ी, मैं दिल्ली में था, एंड उसने बोला सर यू नो व्हाट आई एम गुड इन नेटवर्किंग. मैं कहा कैसे? सर आई हैव 22,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, आई एम एन इन्फ्लुएंसर. बढ़िया बात है. मैं कहा लिंक्डइन है आपके पास? कहते हैं हाँ. मैंने कहा कितने फॉलोअर्स हैं आपके? नो आई डोंट नीड इट एंड ऑल. मैंने कहा ना बट आई नीड इट ना. यू आर एन इन्फ्लुएंसर. चलेगा, अच्छी बात है, रहो उधर, रील्स डालो, कोई बात नहीं. फॉलोअर्स हम भी खरीदते हैं. मेरे को एजेंसीज पता है जहाँ 200 रुपए में तुमको 7,000 फॉलोअर मिलेंगे. है, होता है, नाम नहीं बताऊंगा, फ्री में तुम्हें बताऊंगा. तो है ऐसी PR एजेंसी सर. तुम्हारे 22,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, उससे मेरे को क्या? बट आदत है पोस्ट करने की, करेंगे. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी पूछते हैं. प्लीज टेल मी अबाउट योर 5 स्ट्रेंथ्स एंड 5 वीकनेसेस. मैंने बोला था मेरी वीकनेस है कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड हूँ. असेस ऑनेस्टली, सेल्फ अवेयरनेस एंड कमिटमेंट टू सेल्फ इंप्रूवमेंट. जो मैंने कहा था आप लोग को पता है, क्रिटिसिज्म लेना आना चाहिए तो बताना भी आना चाहिए कि हाँ भाई मैं इधर लैक करता हूँ. लेकिन अपने को क्या लगता है? क्लीशेस, आई एम अ परफेक्शनिस्ट और आई एम एन इन्फ्लुएंसर, डिनाइंग हैविंग एनी वीकनेस. हमारी तो वीकनेस ही नहीं है भैया. हाँ हाँ हाँ, ब्रह्मा के बाद एक आप ही हो, फिर है ही नहीं कोई. मैंने बोला था इसमें भी ट्रिक होती है. मैंने कहा था कि भाई मेरी वीकनेस है कि मैं बहुत डिटेल ओरिएंटेड हूँ. उन्होंने बोला वीकनेस कैसे है? मैं क्योंकि हर जगह आप डिटेल ओरिएंटेड नहीं हो सकते हो. दैट माइट इरिटेट समबडी. उतना टाइम नहीं है शायद हर चीज की डिटेल में जाने का. लेट्स से शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मुझे कुछ डिलीवर करना है, मैं डिटेल देखने बैठूंगा, टाइम तो निकल गया ना. तो वो वीकनेस है मेरा. लेकिन डिटेल ओरिएंटेशन एक्चुअली वीकनेस है कि स्ट्रेंथ है? करेक्ट है. बट मैंने उसको बोला कि वो वीकनेस है, मैंने प्रूव भी किया कि वो वीकनेस है. तो वो मेरे लिए वीकनेस भी प्लस हो गई. ठीक है, ये सारी कुछ चीजें हैं. शो प्रोफाइल क्या है? बेचता हूँ क्या मैं? प्रोफाइल चाहिए मेरी दे दूँ. लिंक्डइन प्रोफाइल चाहिए यार, उसको इम्प्रूव कैसे करना है? वो चाहिए. हाँ तो डाउनलोड करना, प्ले स्टोर एंड्रॉइड है, कर डाउनलोड कर. हाँ यूजर, मैं ChatGPT हूँ क्या यार? यूजर नेम क्या बताऊंगा मैं? क्या हो रहा है मेरा? अरे तो ऐसे बोलना, लिंक्डइन चाहिए सर. अरे अच्छा, एनी डाउट्स और क्वेरीज? वो नेक्स्ट स्लाइड में है मेरा दोनों. क्या एनी डाउट्स और क्वेरीज? कोई ऐसा जिसको बाद में क्या लग से मिलना आफ्टर दिस सेमिनार टू आस्क समथिंग, यू कैन कम. बट गाइज आई होप इसमें आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअली इंडस्ट्री को क्या चाहिए क्या नहीं. मैंने इसके लिए फैकल्टी को एंड ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम को रिक्वेस्ट की थी. क्या होता है, हम ग्रेजुएशन के बाद की लाइफ के लिए तो बहुत रेडी होते हैं, लेकिन हमको 10th में है ग्रेजुएशन करनी है, बट पता नहीं है 12th आएगा बीच में, कह के लेगा. तो जब वो आ जाता है ना, फिर हम बोलते हैं हाँ ये बताया ही नहीं, बैक स्टैबर्स यार, ये तो पता नहीं है आने वाला है. तो वहीं भी कोलैप्स. सो आई होप जितना थोड़ा कुछ मुझे मालूम है, जितना अपने एक्सपीरियंसेस से मैं बता पाया हूँ, आप लोगों को वो समझ आया होगा. एंड फॉर द कन्वीनियंस एज यू आस्क्ड मी, so yes, you can scan it. That is my LinkedIn profile and that is my Instagram profile. And no phone numbers, email पे reach out कर लेना. Alright, so yes, you can reach out to me anytime you want, and that's Vaibhav Mac 1, not I. So thank you very much, and now I'll just hand it over to you. Can we have a huge round of applause for him first of all? Honestly, very interesting session. I don't know how many of you enjoyed, but I thoroughly enjoyed it, sitting backside. And again, you know, whatever we say to my students, I get they could relate to it way better manner. So again, hearing from him, it was really good. Before we just end the session, there's a feedback form for you guys.